सो वंस अगेन, जब भी एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर जो कि वाटर वेपर होता है उसको कोई कोल्ड सरफेस मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसलिए आइस कोल्ड वाटर के ग्लास में या टम्बलर के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस करके जम जाता है ना। तो ये पानी कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है ना। अभी मेरे पास जो ये ग्लास है, इस ग्लास में ठंडा पानी नहीं है, ठीक है, रूम टेम्परेचर जैसा पानी है। तो जो टेम्परेचर बाहर का है वही टेम्परेचर अंदर का है, इसलिए इसके ऊपर कोई ड्रॉपलेट नहीं बन रहा। लेकिन अगर ये आइस कोल्ड वाटर होता, अगर ये आइस कोल्ड वाटर होता तो क्या होता कि बाहर का जो मॉइस्चर है ये इसके सरफेस पे आके कंडेंस कर जाता, ठीक है। तो इसको अपने शब्दों में लिख पाओगे आप मेरी तरह, लिख पाओगे? कौन कौन लिख लेंगे अपने शब्दों में, रेज हैंड। जो जो अपने शब्दों में लिख पाएंगे, those who will be able to write the answer in their own language, raise your hand. Good, good. I want more raise hands, more raise hands. Okay. Next, again, we will see the next question. Next question is, why should we wear cotton clothes in summer? Why should we wear cotton clothes in summer? Cotton is a good absorber of water. Cotton absorbs sweat. Sweat is what? Nothing but water. Easily. And spreads the sweat to larger surface area. Larger surface area. This helps to evaporate the sweat faster. This helps to evaporate the sweat faster. As compared to woolen or synthetic clothes. So we should faster evaporation of sweat makes us feel cool and dry. So we wear cotton clothes
in summer. You might have seen that those who are wearing PPE dresses, doctors, those who are wearing the PPE, doctors, or medical professionals who wear PPE dress to prevent doctors who wear PPE dress sweat a lot because those dresses do not absorb sweat. It is very uncomfortable. But okay,
Okay, Nikita is also present. I think now I am audible. So these questions we had done in the previous class. These questions we had done in our previous class, isn't it? I can give a synopsis of it once again. Why a desert cooler cool better on a hot dry day? So what will be its answer? Its answer will be because evaporation is faster in hot dry day. Okay. Is my voice clear now? I think it should be clear. No, sir. No. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Next is, Yes, sir. how does water kept in the earthen pot become cool during summer? Okay. This answer I had given you yesterday. Yesterday its answer was given. Okay, you can check the screenshot of yesterday. In this we have also answered this, but I can repeat it for you. Acetone, petrol, and perfume are volatile substance. Acetone is nothing but nail polish remover. Petrol and perfume, these are volatile substance. They evaporate by absorbing heat from the palm. अब palm से heat absorb हो जाएगा तो palm कैसा feel करेगा? So palm feels cold. Question number 4's answer. Answer 4. Wider the surface, faster the evaporation. Wider the surface, faster evaporation. Faster the evaporation. And faster the evaporation, faster is cooling. Faster the evaporation, faster is the cooling. So, sipping hot tea from saucer, plate से, is easy than from a cup. Answer 5. What type of clothes should we wear in summer? We should wear cotton clothes. Cotton cloth. Sir, cotton cloth. We should wear cotton clothes in summer.
How does water kept in earthen pot become cool in summer? What will be the answer of this? Who will give the answer? Water in the earthen pot evaporates from the pore. Water in the earthen pot evaporates from its pores. It makes the water cold. It makes the water cold. तो यहाँ पे बिकॉज से पहले हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? बिकॉज से पहले यहाँ पे लिखेंगे ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे ऐसा लिखना कि because evaporation is faster in hot dry day, not in moist day. Not in moist day. Correct. Correct, Nikita. You are right. Now let us see some more questions. We have done the revision of previous day's question also, and we have done the new questions also. अब इसके बाद कोई टॉपिक बचा नहीं है इस बुक में। एक एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए एक पार्ट बचा हुआ है, ये एक्स्ट्रा रीडिंग है। सो चलो इसको रीड करके एक बार देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी बुक क्या सिखाना चाहती है ना। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, चलो इसको ही पढ़ लेते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। इसको रीड कौन करेगा? Who will read this out? Let me listen. Why should I read? Let you read. Let my students read. कौन करेगा रीडिंग? इसको कौन रीडिंग पढ़ेगा? Who will read? Who will read? आरती, ज्योति, खुशी, लक्ष्य चहल, रितिका शर्मा, तनुज गोयल, निकिता। Who will read? कौन पढ़ेगा? Nobody is raising hand. Who will read? Okay. Somebody raised the hand. Aarti. Aarti, you can read now. Aarti can read. Plasma. The state consists of super-energetic and super-exciting particles. These particles are in the form of ionosets, gases. The fluorescent tube and non-sign bulbs consist of plasma. क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं द स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक। ये जैसे कि हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, उसी सॉलिड लिक्विड गैस की तरह प्लाज्मा भी एक स्टेट है।
कैसा स्टेट है? सुपर एनर्जेटिक, मतलब गैस से भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, इसमें ये गैसेस पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं। आयोनाइज्ड मतलब चार्ज, आयोनाइज्ड मतलब चार्ज, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट मतलब आपने टीवी का एक ट्यूब देखा होगा जो ग्लो करता है, फ्लोरोसेंट मतलब ग्लो करना, फ्लोरोसेंट मीन्स टू ग्लो, ठीक है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जो टेलीविजन के अंदर जो ग्लो दिखता है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के लिए दिखता है। ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं। इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब there is a neon gas and beside the fluorescent tube there is a helium gas or some other gas, ठीक है। आप देखना बहुत समय इस तरह के गैसेस के लैंप को हम वेपर लाइट भी बोलते हैं, इसलिए हम वेपर लाइट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर गैस होती है और गैस चार्ज होती है। इनफैक्ट जो ट्यूबलाइट भी है ना, इस ट्यूबलाइट के अंदर भी मरकरी के वेपर भरे हुए होते हैं। जो सफेद कलर का ट्यूबलाइट होता है जो व्हाइट लाइट देता है आपके अंदर, तो इसे इसके अंदर मरकरी का वेपर होता है, ठीक है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। द प्लाज्मा ग्लोज विद स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अलग अलग गैस का अलग अलग कलर होता है। सॉरी, Your voice is not clear, sir. अभी क्लियर है? Sir, your voice is not clear. नाउ इज क्लियर? अभी क्लियर है साउंड? Yes, sir. Yes, sir. जब क्लियर नहीं होगा तो मुझे तुरंत बता देना, ठीक है। द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। जैसा गैस होगा वैसा ग्लो दिखेगा। द सन स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। जो स्टार है, तारा है, सन है, इस सब में क्या है? चार्ज्ड गैसियस पार्टिकल। इस चार्ज्ड गैसियस पार्टिकल के लिए ही इसमें ग्लो आता है ना। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। जो तारा होती है, स्टार्स, सन भी तो एक तरह का स्टार ही है, बहुत हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है? ये गैसेस ग्लो करते हैं। एक और स्टेट ऑफ मैटर है, इस स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट 1920 में एक साइंटिस्ट थे, हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके ये निकाला कि एक पांचवा स्टेट ऑफ मैटर भी है, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैसेस, फिर है प्लाज्मा, फिर है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, है ना। वैसे और भी है, क्वार्क पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये कह रहे थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज किया था और इसका नाम बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट रखा गया, क्योंकि आइंस्टीन ने भी इसकी खोज की थी और सत्येंद्र नाथ बोस ने भी इसकी खोज की थी। इन 2001, बहुत रिसेंटली, यानी कि करीब आज से 20 साल पहले, है ना, 2001, एरिक ए कॉर्नल, वुल्फगैंग एंड केटरली एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए received Nobel Prize in the physics for achieving Bose-Einstein condensation. Bose-Einstein condensation को फिजिकली अचीव करने के लिए इन साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज मिले थे। The Bose-Einstein condensate, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BEC भी कहते हैं, is formed by cooling of the gas extremely at low density. बहुत कम डेंसिटी में, बहुत कम घनत्व में गैस को कूल करके हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाते हैं, ठीक है। You can log on to gameforkids.com and get more information about fourth and fifth state of matter, ठीक है। एक वेबसाइट दी गई है यहाँ पे,
cameforkids.com, cameforkids.com, इसमें आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्या है? www.cameforkids.com। ये है वो वेबसाइट। इस वेबसाइट से आप बहुत सारा एक्टिविटी कर सकते हैं। आप देखिए केम फॉर किड्स में मैटर, एटम, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स, रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री, कई सारा कुछ दिया गया है ना। तो एनसीईआरटी बुक आपको रिकमेंड करती है इस वेबसाइट को रेफर करने के लिए, है ना। तो मैं इसका लिंक भी आपको भेज देता हूँ। एनसीईआरटी बुक इज आपका ड्राइव नहीं है मेरे पास। एनसीईआरटी बुक इज रिकमेंडिंग you to visit www.cameforkids.com।